Hello dear student. In previous lecture, all of you known about microorganism and types of microorganism like viruses, bacteria, fungi, algae and protozoa. Today we will know about uses of microorganism. Microorganisms are mainly two types, pathogenic and non-pathogenic. Pathogenic are those microorganisms who's harmful for us. Okay, and non-pathogenic are those microorganisms useful for us. Today we will discuss here commercial use of microorganism, medicinal use of microorganism, precaution while administering antibiotics, penicillin and vaccines. Okay, so let's start now. Commercial use of microorganism. Microorganisms are used for the large scale production of alcohol. You use of microorganism make alcohol. Okay, like wine and acetic acid, vinegar. Yeast is used for the commercial production of alcohol and wine. Yeast. Yeast are used for yeast are used yeast for this purpose. Yeast is grown on natural sugar present in grains like barley, wheat, rice and crushed fruit juice etc. The process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. The process of conserving of sugar into alcohol is known as fermentation. Louis Pasteur discovered fermentation in 1857. So let's start and tell to you that in homes or small scale industries, uses of microorganisms like a bacteria, lactobacillus. You are all of you also familiar with lactobacillus. You know that what is the lactobacillus? Lactobacillus convert milk into curd. I hope all of you know that lactobacillus is the bacteria. It convert milk into curd. Okay, and second, fungi, yeast, baking of bread and cake. From yeast, you from yeast, baking of bread and cake. Yeast are useful for making baking of bread and cake. The action of yeast if act on sugar to release carbon dioxide, CO2 rises through the rises through the duff making soft energy and also release the value and also increase the value. Okay, sorry, also increase the value. Medicinal use of microorganism. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablet, capsule or injection such as the penicillin. The sources of these medicines is microorganism. आपको हमने अभी बताया कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है पैथोजेनिक और दूसरा होता है नॉन पैथोजेनिक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है एक तरीके का आपका क्या होता है, ये किसमें हमारे मेडिसिनल यूज जितनी भी दवाएं बनती हैं उसमें क्या होता है ये यूजफुल होता है।
व्हेन यू फॉल, जब क्या करते हैं, जब आपको इलनेस यानी जब फीवर होता है तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको क्या करता है, कोई एंटीबायोटिक टेबलेट देता है और आप उसको ला के खाते हैं, फिर से आप क्या होते हैं, सही होती है। ये होता क्या है, इसमें आपकी जो बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, एंटीबॉडीज जो होती है, उनको क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि आपके जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे आपके जो शरीर में क्या होते हैं, चले गए, उससे क्या करता है, ये प्रतिरक्षा करता है, उनसे लड़ता है। ठीक है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी ये मेडिसिन आपने एंटीबायोटिक्स एंटीबॉडीज जो मेडिसिन जो हैं, एंटीबायोटिक्स, ये सारे एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो है, इनका ये कैसे बनाई जाती हैं, आपके इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। दिस डे a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. इन दिनों जो है एंटीबायोटिक्स, जितने भी एंटीबायोटिक्स है, वो सारी किससे प्रिपेयर की जा रही है, बनाई जा रही हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई से। ऐसा ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में जानते होंगे, टेट्रासाइक्लिन एंड द erythromycin are some of the commonly known antibiotics. These medicines kill or stop the growth of diseases caused microorganisms. Okay. You also know that about the diseases, communicable and non-communicable. Okay. Precaution. Precaution while precaution while administering antibiotics. Okay. Precaution while administering antibiotics. It is the important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. ऐसा नहीं है कि आपको फीवर हो गया और आप क्या करते हैं कि कहीं से अपने आप से जाके जो है कि मेडिकल स्टोर से क्या दवा लेके खा लेते हैं। इस कंडीशन में होता क्या है कि हम क्या करते हैं, जो हमें जो जिस तरीके की दवा खानी चाहिए, कह रहा है कि अगर हम मतलब कि जो हमें जो फीवर हुआ है सपोज दैट, या फिर कोई भी ऐसी जो हमें बीमारी हुई है, ठीक है, जो भी हमें डिजीज़ हुई है, अगर हम क्या करते हैं, अगर डॉक्टर से एडवाइस ले करके हम जब दवा लेते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या रहे, उनको ये पता होता है कि इस रोग में कौन सी दवा उनको देनी है। अगर आप खुद से जाके बता के लेते हैं, इसमें होता क्या है कि आपकी यानी कोई अगर मतलब ऐसी दवा अगर आप खा लेते हैं, तो आपकी जो सेल होती हैं, ठीक है, आपकी जो सेल्स होती हैं, ये एंटीबॉडीज क्या करती है, कुछ ऐसी जो आपकी दो हानिकारक यानी हार्मफुल आपकी अगर एंटीबायोटिक्स आपको दे दी गई, तो उससे क्या करती है, आपके जो यूजफुल सेल होती हैं उनको भी क्या करती हैं, ये नष्ट कर देती हैं। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, आपको दवा खाने से पहले आपको क्या होता है, डॉक्टर की एडवाइस ले लेनी चाहिए। ठीक है। Also, you must finish the course prescribed by the doctor if you take antibiotics when not needed or in wrong dose. ठीक है। यानी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जितना भी डॉक्टर ने बता रखा है कितने दिन दवाई करनी है, उसी के हिसाब से करना होता है। ठीक है। और रॉन्ग डोज में दवा को नहीं लेना होता है। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि नहीं हम अब अगर टैबलेट जो मिला हुआ है, एंटीबायोटिक्स जो मिला हुआ है, उसके हम उसकी क्वांटिटी को बढ़ाकर खा लेते हैं तो जल्दी से हम ठीक हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है। चलिए, आल्सो it may make the drugs less effective when you might need in the future. Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. यानी आपकी जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होती हैं, ठीक है, जो आपके सेल्स होते हैं, उनको क्या करती है, नष्ट कर देती है। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर द कॉल्ड बाय वायरसेस। आपकी जो एंटीबायोटिक्स होती है, ये इसमें क्या होता है, जो आपके फ्लू होता है और क्या होता है, कोल्ड होता है, इनमें क्या करता है, ये हेल्पफुल नहीं होता है। ठीक है। क्यों ऐसा नहीं, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से होने वाले आपके डिजीज नहीं है, ये किससे, वायरस से होने वाले। ठीक है। पेनिसिलिन। In 1929, Alexander Fleming was working on the culture of diseases causing bacteria. Suddenly, he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. He observed that presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. आप 1993 में 1993 में
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो क्या कर रहे थे, यानी कि आपके जो बैक्टीरिया हैं उस पर क्या कर रहे थे, ये रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, प्रैक्टिकल कर रहे थे। उन्होंने देखा सडनली उन्होंने अचानक देखा कि जो संवर्धन है, यानी कि जो जिसपे उन्होंने टेस्ट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जो तस्तरी रखी थी उस पर कह रहा है कि हरे रंग की फफूंद यानी कि फंगस फंगस समझ रहे ना आप, वो क्या हो गया, लग गए, ठीक है, जो क्या होते हैं छोटे जीवाणु होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उन्होंने ये पाया कि ये जो फंगस थे, फफूंद थे, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया को, ये फंगस जो है बैक्टीरिया को क्या कर रहे हैं, वृद्धि होने से रोक रहे हैं, उनको इंक्रीज होने से, ये फंगस क्या है, बैक्टीरिया इंक्रीज, बैक्टीरिया जो थी, ठीक है, उनको फंगस क्या कर रहे हैं, रोक रहे थे, ठीक है, रिटेन कर रहे हैं। यह उन्होंने ये पाया कि बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं ये क्या कर रहे हैं, फंगस के द्वारा क्या मारे गए, है ना, रोका उन्होंने, फंगस ने बैक्टीरिया को रोका भी, और क्या किया, देखा उन्होंने कि बहुत सारे जो बैक्टीरिया थे, ये फंगस जो था आपका वो क्या उनसे मारे गए, ठीक है, जिसको फंगस को बोलते हैं फफूंद, ठीक है, और बैक्टीरिया दैट मीन्स जीवाणु, ठीक है। इस प्रकार जो आपके जो फफूंद थे, क्योंकि उन्हीं से, यानी कि जो आपके फंगस है उसी से उन्होंने क्या बनाया, आपके इसी फंगस से पेनिसिलिन बनाई, क्या बनाई, पेनिसिलिन, ठीक है। इसलिए इनका बोला जाता है कि इन्होंने क्या किया था, आविष्कार किसका किया था, यानी कि इन्होंने किसका ये क्या बनाया था, पेनिसिलिन बनाया था, किसने, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या क्या बनाया था, पेनिसिलिन बनाया था, समझ में आया। He observed that the presence of a mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many these bacteria. From these mold, penicillin was prepared. Okay. Next, वैक्सीन। वैक्सीन के बारे में आपको हम बता दें, जैसा कि आप इस समय देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे कि वैक्सीन यानी कि आपको आपकी कोरोना की वैक्सीन बनाई जा रही है, अभी तक क्या हुआ, प्रिपेयर नहीं हो सकी है। कोरोना वायरस आपका जो है कि चीन के वुहान शहर से क्या हुआ था, सबसे पहले जो चीन के वुहान शहर में पाया गया, और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया, फैल, ये एक पैंडेमिक का रूप ले लिया, महामारी का रूप ले लिया, ठीक है। ये आपका इस समय कोविड-19 जो चल रहा है ये पूरा पैंडेमिक का रूप ले रखा है, पूरी कंट्रीज से क्या है, परेशान है ना, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं कि ये वायरस, एक्चुअल में वायरस ये किस तरीके से, वायरस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। ये जो वायरस है आपका, ये सार्स का एक क्या है, समूह है, ठीक है, सार्स, जो जिसमें आपका इन्फ्लुएंजा का क्या है, ये प्रजाति उसमें आता है, कौन सा, कोरोना, ठीक है। ये आपका जो, हेलो डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने ये बता रहा, I told to you that in previous lecture about viruses, virus are behave like a dead if he outside of our body, and alive when it enter the body. Again it's behave alive when it's enter our body. Then about viruses like a कोरोना, कोरोना के बारे में हमने आपको बताया कि ये क्या है, इसका सार्स का एक समूह है, ठीक है, ग्रुप है, और जिसमें आपका इन्फ्लुएंजा आता है। कोरोना जो है सबसे पहले आपका जो है कि चीन के वुहान शहर से क्या हुआ, वहाँ पे पाया गया, और धीरे धीरे करके ये पूरे आपके पूरा जो वर्ल्ड है उसमें क्या हुआ, फैल गया। अब ये कोरोना होता क्या है, किस तरीके से आपको आप में इफेक्ट करता है, किस चीज़ को इफेक्ट करता है, लाइक आपने निमोनिया सुना होगा, निमोनिया जो छोटे बच्चों में हो जाता है, ये क्या करता है, आपके जो लंग्स होते हैं उनको क्या करता है, उन पर अफेक्ट करता है, उनको प्रोवाइड करता है, ठीक है, आपके लंग्स को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब लंग्स को प्रोवाइड करने से आपको होता है कि आपको पता ही है कि आपके जो लंग्स हैं इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे आपके एल्वेली जो होती हैं वो क्या करती हैं, आपके ब्लड को क्या करते हैं, ये ब्लड का प्योरीफाई करने का, यानी कि आपका जो हार्ट होता है और इसी तरह हमारा जो आपका जो दोनों लंग्स होता है, इसमें क्या होता है, ब्लड के प्यूरिफिकेशन का वर्क होता है, ठीक है। अब इस तरीके से आपका जो यानी कि ये किस तरीके का आपका जो वायरस है ये क्या किस तरीके का रूप ले लेता है, आपके निमोनिया का रूप लेता है, ठीक है। और अब ये जो वायरस होता है इस तरीके का होता है कि पूरा का पूरा जो होता है ना प्रोटीन का, इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर जो इसका आपका होता है, सर्कल आपका स्फीयर शेप का इसका स्ट्रक्चर है, और ये बिल्कुल क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड होता है। इसलिए आपके जो भी हम क्या कहते हैं, मेडिसिन कहते हैं लेते हैं, ठीक है, इनटेक करते हैं, क्या अगर वहाँ तक आपका ये पहुँच नहीं पाता। तो हम बात करते हैं इसकी, इससे पहले
हम बात कर रहे हैं कि वैक्सीन क्यों अब तक इसकी आएगी, ठीक है। मतलब वैक्सीन जो आपकी होती है, वैक्सीन एक्चुअल में होता क्या है, और वैक्सीन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। When a disease is carrying microbes enter our body, the body produce antibodies. Okay? When a disease is carrying microbes enter our body, the body produce antibodies to fight the invader. The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. So if dead or weakened, sorry, if dead or weakened microbes are introduced in healthy body, the body fights and kills them by producing suitable antibodies. The antibodies remains in the body and we are protected from the diseases causing microbes. This is how vaccine works. Several diseases include cholera, tuberculosis, smallpox, and the hepatitis can be prevented by the vaccination. Children are given injection to protect themselves against the several diseases necessary. Vaccines are available in hospital. Vaccinations are given to children for protection against polio under the Pulse Polio program. Polio draft given to children and actually a vaccine. This is called the oral vaccination. Okay? तो हम बात करते हैं यहाँ पे वैक्सीन की, ठीक है। आपको बताते हैं वैक्सीन क्या होता है। जो आपका रोग होता है, जो भी आपके डिजीजेस होते हैं, ठीक है, ये आपके क्या एक तरीके के क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और जब ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में जब ये एंटर होते हैं तो उनसे फाइट करने के लिए हमारी जो एंटीबॉडीज होती है, हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरक्षी रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, जिसको बोला जाता है एंटीबॉडीज, ये क्या करती है, उनसे लड़ना स्टार्ट करती है, ठीक है। अब जो होता है क्या है, हमारे जो बॉडी में क्या करता है, जब इंटर हो जाता है, शरीर क्या करती है, उसको पहचान लेती है, उसको ये स्मरण रहता है, उसको अगर ये पहली बार जो आपके बॉडी में गया, ठीक है, उसको किसी सपोज दैट आपका कोई भी आपका फीवर हो जाता है या फिर आपको जुकाम खांसी होती है, तो इसको अगर बार बार होता है तो आप जब ये बार बार होता है तो आपकी जो बॉडी होती है उसको क्या कर लेती है, पहचान लेती है, ठीक है। पहचानने के बाद जब भी आप क्या करते हैं, वैक्सीन का इसी जब पहचान लेती है तो उसी तरीके से आपकी बॉडी उसके साथ बिहेव करती है और जल्दी आपकी बॉडी रिकवर हो जाती है, ठीक है। आपकी जो शरीर होती है उसको सब कुछ क्या होता है, याद हो जाता है, ठीक है, कि जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से क्या है, जिसने आपके शरीर में क्या किया, प्रवेश किया, उससे किस तरीके से लड़ना है, ठीक है। अब ये क्या करता है, जो वायरस आपको बताया हमने, क्या इस तरीके से कैसा बिहेव करता है, डेड बिहेव करता है। जब आपकी बॉडी से बाहर होता है डेड बिहेव करता है, यानी कि मृत की तरफ बिहेव करता है, ठीक है। ये आपका जो वायरस होता है मृत होता है, लेकिन जब ही ये क्या होता है, अलाइव यानी किसी भी लिविंग थिंग्स के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, हमारे अंदर जब जाता है तो किस तरीके से अलाइव की तरह बिहेव यानी जीवित हो जाता है, ठीक है। अतः मृत अथवा निष्क्रिय सजीवों, अब मान लीजिए कि सपोज दैट कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको क्या करना, टुडे इज योर होमवर्क, you search about corona viruses and prepare a short note on corona virus. Okay,